Okay, today we will study the applications of PN junction. PN junction is also called diode. AC current and DC current, there is a basic difference between the two. AC current changes its direction once in one direction and again in the other direction. For half of cycle it changes direction. Now there are so many jobs we have to do with electric current. One of the job is to charge a capacitor. We need on one plate of the capacitor the current should always enter and other side has to be connected with minus, plus minus. If we apply DC here, this is connected with plus, this is connected with minus, and it gets charged up, charge. But if we connect it with AC, then it will become plus, this will become minus, the charge is increased, again this will become minus and this will become plus and the charge again vanish. इस तरह से इसमें आधे साइकिल तक चार्ज होगा और आधे साइकिल में चार्ज निकल जाएगा और ये चार्ज नहीं होगा, नेट चार्ज जीरो होगा. इसी तरह से हम करंट को यूज करते हैं उसके केमिकल इफेक्ट्स के लिए, इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं. इलेक्ट्रोलिसिस करते समय आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, वी हैव two electrodes, one is connected with plus, one is connected with minus, and when the current flow through this, then the minus one get the positive ions. Like in silver nitrate, the silver will deposit on minus, it will leave this electrode and it will deposit on this electrode. इस तरह से कॉपर का प्यूरिफिकेशन, सिल्वर, एल्यूमिनियम, हर एक का इलेक्ट्रिफिकेशन जब हम करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, द पॉजिटिव विल गो फ्रॉम दिस प्लेट टू दिस प्लेट. उसके लिए हमको करंट की डायरेक्शन ऐसी ही चाहिए. इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स, तो यहां जो सिल्वर डिपॉजिट हुआ है वो यहां आ जाएगा. इफ वी अप्लाई AC हियर फॉर हाफ ऑफ द साइकिल, the current will go in this direction and for other half it will go in this direction. तो एक बार सिल्वर के आयन इधर जाएंगे, दूसरी बार इधर आ जाएंगे और फाइनली हमको यहाँ पर सिल्वर डिपॉजिट नहीं मिलेगा. इस तरह से ऐसे बहुत से वर्क हैं जो हम AC से नहीं कर सकते, जिसके लिए हमको DC चाहिए, जिसमें हम बैटरी को ही यूज करेंगे, यूनिडायरेक्शनल करंट ही यूज करेंगे, तभी हम वो वर्क कर सकते हैं. सो व्हेन वी गेट AC फॉर दिस, हमको अगर AC सप्लाई मिली और हमें ये काम करने हैं, देन वी से दिस AC इज नॉट द करेक्ट करंट वी वांट. देयर इज सम प्रॉब्लम विद दिस करंट, इट इज चेंजिंग डायरेक्शन. There is some defect with this current, it is changing direction and we want a rectification. हम उसमें रेक्टिफिकेशन चाहते हैं. तो यहाँ रेक्टिफिकेशन का मीनिंग क्या हुआ? रेक्टिफिकेशन मीन्स इट शुड फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन, द वन पोटेंशियल should be higher and potential of the other plate should always be lower, so that current flow only in one direction. That is the rectification we want in alternating current. So if we are able to do that, then we say that we have rectified the current. So what is the defect in AC? That it changes direction, it changes its magnitude continuously. This is the defect. How do we rectify it? We make it unidirectional and we also make it that it does not change its magnitude. If we are able to do that, it goes in one direction without changing in magnitude, then it is converted into DC and we will say it is rectified. So what is rectification? In one sentence, converting AC to DC is rectification. So we will write it. Rectification means converting AC to DC. This is rectification. Now, how do we do it? There are three steps of doing it. First, we find out how much voltage we need in DC. Whatever AC we have, first we change its voltage.
its potential difference with help of transformer, and then we convert it into DC, because after becoming DC we cannot change its voltage. DC पर ट्रांसफार्मर काम नहीं करता, ट्रांसफार्मर सिर्फ किस पे काम करता है, AC पे, तो DC बनने के बाद हम वोल्टेज चेंज नहीं कर पाएंगे, इसलिए वोल्टेज कब चेंज करते हैं, पहले ही चेंज कर लेते हैं DC बनाने के पहले. सो वी हैव वन AC सप्लाई, इस AC सप्लाई को हम कनेक्ट कर देते हैं एक ट्रांसफार्मर से. दिस इज इंडिकेशन ऑफ ए ट्रांसफार्मर. ये हमने एक ट्रांसफार्मर से कनेक्ट कर दिया, यहां से हमको आउटपुट मिलेगा. ओके, whatever is the required voltage वो यहाँ पर हमको मिल गई आउटपुट वोल्टेज. अगर हमको 12 वोल्ट चाहिए तो इसको 12 वोल्ट बना लेंगे, अगर 32 चाहिए 32 बना लेंगे, 6 चाहिए 6 बना लेंगे, जो भी हमको चाहिए वो रेशियो फिक्स करके हम बना लेंगे. और यहाँ से सप्लाई क्या करेंगे, AC. ओके, दिस AC has got this variation plus minus. With the time it will be positive negative positive negative, one terminal will become positive negative positive negative. Okay, so here we will fit one diode, this, and here from this point and from this point we connect our load wherever we want to supply load. ये हमारा मोबाइल है, बैटरी है, कैपेसिटर है, जिसमें हम करंट देना चाहते हैं, ये वो चीज है. This we will call load. Now we will study what will be the output current across this load. यहाँ पर एक साइकिल AC का आएगा, इसमें एक बार प्लस आएगी करंट और फिर माइनस आएगी. सो फॉर फर्स्ट हाफ साइकिल of AC we will give them certain names. This is terminal A, this is terminal B. For first half cycle of AC, A is positive and B is negative. The direction of current is, this is diode. Direction of current is A, D, R, B. This is the direction of current. The direction of current is A, D, R, B. Now, if this is the direction of current, can you tell me whether this diode will allow it or will not allow it? The diode allows if it is a forward biasing. इसका ये वाला प्लस है और ये साइड माइनस है. This is plus terminal, this is minus terminal, and for the first half A is positive. If A is positive, positive is connected with positive, positive connected with positive, minus connected with minus. So this is forward biasing. Diode is in forward biasing. Allow current to pass. Allow current to pass. तो ये करंट पास हो गई, ये इनपुट था और यहाँ पर हम आउटपुट बनाते हैं. ये जो हाफ टाइम पीरियड तक इसमें से करंट फ्लो हुई वो इधर आ गई और ये हमको आउटपुट मिला. Output. Now for the second half,
cycle B is positive, A negative. B is positive and A is negative. अगर B पॉजिटिव हो गया, B पॉजिटिव हो गया और A नेगेटिव हो गया, तो पॉजिटिव किससे कनेक्ट हुआ? डायोड के माइनस से. तो ये बाइसिंग कैसी हो गई? रिवर्स बाइसिंग. This is reverse biasing. This is reverse biasing. Current not allowed. Not allowed. तो ये करंट अलाउ नहीं हुई. उतनी देर तक करंट अलाउ नहीं होती तो इसके ग्राफ में हम क्या दिखाएंगे? आंसर है इसके ग्राफ में ऐसे दिखाएंगे, जीरो करंट, ऑलमोस्ट जीरो करंट. यदि आप ये कहेंगे कि रिवर्स करंट तो पास होती है, देन रिवर्स करंट इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू दिस, सो दैट विल बी लाइक दिस. वेरी स्मॉल करंट पास थ्रू इट, that is negligible, so zero. This is the current in one cycle. After this, again A become positive and B, after half cycle, when A become positive, again we get the output as this. Again A become negative, B become positive, the current become zero. In this way, this is what we get as output. Here what we find, that current is either going from A, D or B, or it is not going at all. So there is only one direction of current to pass. Hence in every cycle, current pass in the direction A, diode, resistance B only. Therefore this point and this point, C and D, therefore C is always positive, and current through R is only in one direction, C to D. So we always get a current in the direction C to D. D to C कभी करंट नहीं जाती. अब इसमें हम ये देख रहे हैं कि इसका ये जो एक फुल साइकिल होता है, वन फुल साइकिल, आउट ऑफ दिस ओनली हाफ साइकिल करंट इज फ्लोइंग, अदर हाफ करंट इज नॉट फ्लोइंग इन द आउटपुट. तो इसने क्या किया? आधे साइकिल की करंट हमको दी और आधे साइकिल की नहीं दी, वो हमारा वेस्ट हो गया. तो इसने सिर्फ आधे साइकिल को करेक्ट करके हमको दिया. सो वी विल कॉल इट हाफ वेव रेक्टिफायर. दिस इज हाफ वेव रेक्टिफायर. सो दिस हाफ वेव रेक्टिफायर, इट इज ओनली टू टेल अस अबाउट द प्रिंसिपल. इसको हम लोग प्रैक्टिकली यूज नहीं करते बिकॉज इट वेस्ट अवर एनर्जी. हाफ वेव रेक्टिफायर, बाकी आधे वेव की एनर्जी वेस्ट हो रही है, सो प्रैक्टिकली इट इज नॉट यूज्ड एंड वी यूज अ डिफरेंट टाइप. पर ये हमको प्रिंसिपल बताता है कि कभी भी हम डायोड लगाकर निगेटिव साइड की करंट को ब्लॉक कर सकते हैं. नेगेटिव साइड की करंट यानी उल्टी करंट को ब्लॉक कर सकते हैं और सिर्फ एक डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी. तो ये प्रिंसिपल याद रखिए कि इसमें हमेशा
एक डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी, उल्टी डायरेक्शन में करंट को डायोड ब्लॉक कर देता है। ये हमने इससे सीखा। ओके, सो नाउ वी विल स्टडी द फुल वेव रेक्टिफायर। अगर हम फुल वेव को रेक्टिफाई करना चाहें तो कैसे करेंगे, देखिए। नाउ वी विल हैव फुल वेव रेक्टिफायर। उसके दोनों साइकिल हम यूज करना चाहते हैं। इसके लिए फिर से ट्रांसफॉर्मर, अब ये जो हम ट्रांसफॉर्मर लेते हैं, इस ट्रांसफॉर्मर में जो आउटपुट है सेकेंडरी कॉइल के बीच से यहां से हम एक कनेक्शन ले लेते हैं। दिस इज नोन एज सेंट्रल टैपिंग। टैप करना मतलब नल खोलना, यहां से हम करंट ले सकते हैं। सो दिस इज सेंट्रल टैप। दिस इज ए बी, इन दोनों को हमने दे दिया, लेट अस कॉल इट P एंड दिस इज Q। सो ए बी में हम इनपुट देंगे, दिस इज इनपुट, और इनपुट करंट जो हम दे रहे हैं, दैट इनपुट करंट I will show here, this is input current, this is input current, positive, negative. Okay, now here the fitting is done in this way. There is one diode fitted here, this is D1. There is one diode fitted here, this is D2, and these two are connected with each other. अब ये सेंट्रल टैप और इन दोनों को जो शॉर्ट किया हुआ है यहां से, इन दोनों के बीच में हम लोड को लगाते हैं दिस वे, या ये कह सकते हैं ये दोनों टर्मिनल हमारे आउटपुट के टर्मिनल होते हैं। तो हम चाहें तो इन दोनों से, यहां से और यहां से, ये पॉइंट, इसको हम बाहर लेके आ सकते हैं। ये हमको आउटपुट मिलता है, आउटपुट, और यहां पर हम लोड लगा सकते हैं, दिस इज लोड। ठीक है, ये भी लोड आप समझ सकते हैं, वहां भी समझ सकते हैं, इट इज वन एंड द सेम थिंग। ओके, तो इसके लिए हम कुछ नाम दे देते हैं, लेट्स कॉल इट M N। सो दिस इज M एंड दिस पॉइंट इज N। ये हमारे सर्किट हैं। अच्छा, अब इसमें देखिए, फॉर द फर्स्ट हाफ साइकिल P become positive and Q become negative. For the first half, this is positive and this is negative. I will write it here. For first half cycle, P is positive, Q is negative. Okay? अब अगर P पॉजिटिव और Q नेगेटिव है तो P से करंट को Q तक जाना है। इधर देखिए, P पॉजिटिव है, ये हायर पोटेंशियल पर है, Q नेगेटिव है, लोअर पोटेंशियल पर है। C कहाँ है? तो आंसर है C का पोटेंशियल P से लोअर है, Q से हायर है, बीच में है। ओके, P से चार्जेस पुश आउट होते हैं, ये प्लस है और ये माइनस, D का ये प्लस है और ये माइनस। P टाइप, N टाइप, P टाइप, N टाइप। नाउ
डायोड 1 का कनेक्शन कैसा है, जहां पर P किससे जुड़ा है, P से. इज इट ए फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस? फॉरवर्ड बायस, इट विल अलाउ करंट टू पास. D का पॉजिटिव या P टाइप किससे जुड़ा है, माइनस से. दिस विल नॉट अलाउ द करंट टू फ्लो, इसके अंदर से करंट का आना जाना बंद है. अगर ऐसा होगा तो यहां से जो करंट आएगी ये अलाउ करता है, यहां आएगी, उसका टारगेट Q जाने का है, पर ये करंट को अलाउ नहीं कर रहा है. सो करंट विल नॉट फ्लो, बट इट विल नॉट फ्लो थ्रू दिस पाथ. करंट के लिए एक दूसरा पाथ खुला है, P से C भी लोअर पोटेंशियल पर है. सो द करंट विल गो हियर, इट विल अलाउ, इट विल गो हियर, फ्रॉम हियर इट विल गो थ्रू रेसिस्टेंस R और यहां से होके C तक आ गई. ये सर्किट कंप्लीट हो गया. इस सर्किट में करंट फ्लो हो सकती है या नहीं? तो आंसर है हो सकती है, बिकॉज दिस इज फॉरवर्ड बायसिंग, इट इज अलाउइंग करंट टू पास. तो यहां से करंट ऐसी आएगी, यहां जाएगी, यहां नहीं जाएगी, बिकॉज दिस डज नॉट अलाउ करंट टू पास. तो इस R में से करंट कहां से कहां पास हो रही है, N से M की तरफ. N से M की तरफ ये करंट पास होती है. ओके, आई विल चेंज द डायग्राम, ताकि ये पॉजिटिव है और ये हायर पोटेंशियल पर और ये लोअर पोटेंशियल पर. लेट अस पुट हायर पोटेंशियल टर्मिनल ऑन टॉप और लोअर पोटेंशियल को हम नीचे रखना चाहते हैं. सो आई विल मेक इट दिस वे. दिस एंड इसका नाम रखते हैं M और इसका नाम रखते हैं N. आई एम सॉरी, थोड़ा सा करेक्शन आपको करना है, बट दिस वे. अब करंट किधर से किधर फ्लो करती है, P से करंट फ्लो हुई फर्स्ट हाफ साइकिल में, ये उसका पाथ है. अगर उसका ये पाथ है तो हायर पोटेंशियल पर कौन है, M, और लोअर पोटेंशियल पर कौन है, N. Current flows from M to N. Current flows from M to N. ये करंट की डायरेक्शन. इसी चीज को हम नोट डाउन कर लेते हैं. फॉर फर्स्ट हाफ साइकिल इनपुट AC, P is positive, Q is negative. The current flows, no. First, let's mention who are in forward biasing and who are in reverse biasing. D1 is forward biased and D2 reverse biased. Forward biased and reverse biased. Therefore, only path for current is P, D1, M, N, C. P से D1, M, N, C. और यहां करंट M से N ऐसे फ्लो हुई from M to N. This is for the first half cycle. Now for second half cycle, Q is positive and P is negative. Q अब पॉजिटिव है और ये P नेगेटिव हो गया इन द सेकेंड हाफ साइकिल. इन द सेकेंड हाफ साइकिल, फर्स्ट हाफ साइकिल में हमको जो आउटपुट मिला उसे मैं यहां बनाता हूं. फर्स्ट हाफ साइकिल में ये पूरी करंट हमको यहां से यहां तक ऐसे मिल गई. सो दिस आई कैन मेक एज दिस. ये इतने टाइम तक हमको ऐसे करंट मिलती रही. किस डायरेक्शन में, M to N.
तो ये पॉजिटिव है, इसलिए ये करंट हमको मिली पॉजिटिव डायरेक्शन में। ओके, अब फॉर सेकेंड हाफ साइकिल Q इज पॉजिटिव एंड P इज नेगेटिव। अब कौन फॉरवर्ड बायस में है? D2 इज इन फॉरवर्ड बायस एंड D1 in reverse bias. रिवर्स बायस करंट अलाउ नहीं करेगा, द करंट विल पास फ्रॉम हियर अप टू दिस मच, ये अलाउ नहीं करता है, इसलिए ये C पर आ जाती है करंट, क्योंकि ये प्लस है तो C का पोटेंशियल इससे कम होगा, ये माइनस है और भी कम होगा, तो ये पहले तो इधर जाने की कोशिश करेगी बट दिस डज नॉट अलाउ, तो फिर ये यहां से C पर आ जाएगी। तो पाथ क्या बना? करंट फ्लो थ्रू Q D2 M N C, Q D2 M N C, ये उसका पाथ बना। और इस पाथ में भी करंट M और N में कहां पहले थी? M और फिर कहां गई? N। तो करंट की डायरेक्शन किधर है? M से N। So in both the cycles current is flowing from M to N, और M to N करंट को हम क्या मानते हैं? पॉजिटिव करंट। M to N करंट के लिए फिर से ये कैसी है? ये पॉजिटिव करंट। तो जब M to N होगी तो हम उसे पॉजिटिव मानेंगे, और जब N to M होगी तो उसको नेगेटिव मानेंगे। तो यहां पर हमको दोनों बार कैसे मिल रही है? M to N, M to N। ये वाली क्या है? P to Q, और ये वाली करंट कौन सी है? Q to P। तो AC एक बार P to Q फ्लो होती है, ये प्लस और ये माइनस, दूसरी बार ये प्लस और ये माइनस। लेकिन M और N में देखिए, पहली बार करंट ऐसे आई तो M का पोटेंशियल हाई और N का छोटा, क्योंकि ये करंट की डायरेक्शन है, तो M बिकम पॉजिटिव एंड N इज एट ए लोअर पोटेंशियल। इस समय क्या होता है? जब ऐसे करंट जाएगी, व्हाट डज दैट मीन? M इज एट ए हायर पोटेंशियल एंड N एट ए लोअर पोटेंशियल। तो दोनों बार M हायर पोटेंशियल पर है और N लोअर पोटेंशियल पर है। सो दोनों बार करंट हमको कैसे मिलती है? M to N, जिसको हमने पॉजिटिव माना है, और N to M को नेगेटिव माना है। दोनों हाफ साइकिल में करंट नहीं आई। देन साइकिल्स आर रिपीटेड, तो इससे अगले साइकिल में फिर ये रिपीट होता है, फिर इससे अगले साइकिल में फिर रिपीट होता है। So in this way we always get a current which is from M to N, through M to N. The direction of current is always M to N, always M to N, i.e. M is always at higher potential. Hence the current has become unidirectional. तो ये करंट कैसी बन गई? यूनिडायरेक्शनल, यानी सिर्फ इसमें एक ही डायरेक्शन है, M से N। ये M को हम यहाँ ले आए, N को यहाँ ले आए। M इज ऑलवेज एट ए हायर पोटेंशियल एंड N इज ऑलवेज एट ए लोअर पोटेंशियल। तो करंट हमेशा कैसी फ्लो होगी? M to N, और यूनिडायरेक्शनल हो गई। अब अगर हम यहाँ एक कैपेसिटर लगाएंगे तो कैपेसिटर को हमेशा इधर से प्लस मिलेगा, इधर से माइनस मिलेगा, राइट? अगर हम यहाँ पर
केमिकल रिएक्शन करेंगे तो ये हमेशा प्लस रहेगा और ये माइनस रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको रेक्टिफिकेशन कर लिया और इसमें हम क्या देखते हैं, फुल वेव हमको काम करके दे रही है, ये भी हमको काम करके देती है, ये भी हमको वर्क करके देती है और दोनों एक ही डायरेक्शन में वर्क करके देते हैं। तो इसको हम बोलेंगे फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, अब इस फुल वेव रेक्टिफायर में यहां तक हो गया, करंट क्या हो चुकी है, यूनी डायरेक्शनल, एक डायरेक्शन में आ चुकी है, लेकिन मैग्नीट्यूड में अभी वेरिएशन इसके बाकी है। ये वाले जो मैग्नीट्यूड के वेरिएशन हैं ये भी इसको एसी नेचर देते हैं। जैसे हमने यहां पर अभी अपनी ये लाइन बनाई हुई है, अगर हम इस लाइन को यहां शिफ्ट कर दें, ये हमने मान लिया हमारे ओरिजिन की लाइन है, तो एक बार इससे वोल्टेज ऊपर जा रही है, फिर नीचे जा रही है, फिर ऊपर जा रही है, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर और नीचे। ये किसका नेचर है, एसी का। तो इसका एसी का नेचर गया नहीं है, तो इसके पास एसी का नेचर अभी भी है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड वेरी कर रहा है। भले हमने डायरेक्शन एक कर ली है, तो हम क्या चाहते हैं कि ये फ्लैट हो जाए, फ्लैट हो जाए, एक जैसा इसका यूनिफॉर्मिटी आ जाए। और उसके लिए हम एक छोटा सा डिवाइस इसमें और लगाते हैं, वी विल कॉल इट फिल्टर। फिल्टर, फिल्टर क्या करेगा, इसके पास ना दो तरह के नेचर माने जाएंगे। ये एक और चीज आ रही है, इसको समझ लीजिए। इसके पास, ये इलेक्ट्रिक करंट के पास दो तरह के नेचर हैं, एसी एंड डीसी। डीसी नेचर क्यों, क्योंकि हमेशा इसकी डायरेक्शन यूनिडायरेक्शनल है, सिर्फ ये हायर रहता है और ये लोअर रहता है। सो दिस इज करंट इज गोइंग ओनली इन वन डायरेक्शन, दिस इज the DC characteristic of this supply, but it changes, it has variation, and that variation is AC nature. So it has got both the nature, DC nature as well as AC nature. तो हम ये कहते हैं कि ये जो रेक्टिफाइड करंट है इसके पास DC कंपोनेंट भी है और AC कंपोनेंट भी है। ओके, हमको सिर्फ डीसी कंपोनेंट चाहिए, वेरिएशन वाला एसी कंपोनेंट नहीं चाहिए। तो हम एक इसमें छन्नी लगाते हैं, फिल्टर, उसमें से एसी निकल जाएगा और बाकी हमको क्या मिलेगा, डीसी। ये हम एक तरीका लगाते हैं। और वो जो डिवाइस हम लगाएंगे, फिल्टर डिवाइस, वो कैसी होती है, देखिए फिल्टर, ये दोनों ऐसे आगे चलते हैं, इसके बीच में हम एक कैपेसिटर लगा देते सी, और इस कैपेसिटर के पैरेलल में एक हाई रेजिस्टेंस लगाते हैं। ओके, इसको छोड़ दीजिए। नाउ वी अंडरस्टैंड दिस। ये यहां पर आया और ये सप्लाई यहां से, देखिए P को कहां पहुंचना था, Q पे, M वाले चार्ज को कहां पहुंचना है, N पे। M इज एट ए हायर पोटेंशियल, N इज एट ए लोअर पोटेंशियल। यहां से जो चार्ज जा रहा है उसका टारगेट कहां जाना है, N पे जाना है। कैपेसिटर किस नेचर को अलाउ करता है और किसको ब्लॉक करता है, AC को अलाउ करता है और DC को ब्लॉक करता है। तो यहां से AC DC दोनों यहां पर पहुंचती हैं, दोनों को कहां जाना है, N पे जाना है। ये किसको अलाउ कर देगा जाना, AC को। तो यहां से ये जो AC नेचर की करंट है वो इसको अलाउ करेगा, वो यहां आ गई, N पे चली गई, यहां चली गई, उसका सर्किट कंप्लीट। क्या वो आगे जाएगी, AC नहीं जाएगी, उसको यहां से रास्ता मिल गया। फिर से यहां M से जो करंट जा रही है उसका टारगेट कहां जाने का है, N। ये वाली करंट कहां से आई है, ऐसे, और उसको जाना कहां है, यहां। तो M से उसको कहां जंप करना है, N। ओके, ये हमने बनाया या नहीं बनाया, दैट हार्डली मैटर्स। मान लीजिए हमने इसको भी गायब कर दिया। ये अब यहां से करंट को यहां जाना है, तो ये यहां पर आई, इसमें जाना चाहती है, ये एक रास्ता मिला। ये किसको अलाउ कर देता है, AC को अलाउ करता है। तो AC इसमें से गई और यहां पहुंच गया, तो AC कंपोनेंट पार हो गया। कौन नहीं पार हुआ,
डीसी कंपोनेंट पार नहीं हुआ और वो डीसी कंपोनेंट हमको यहां पर मिलता है ये। तो यहां जो हमको मिलेगा वो अब कैसा कंपोनेंट होगा? डीसी कंपोनेंट। और डीसी कंपोनेंट कैसा होता है? डीसी कंपोनेंट ये ऐसा होता है, ये वाली वोल्टेज, और ये जो एसी था ये कम हुआ ज्यादा हुआ, कम हुआ ज्यादा हुआ, ये गायब हो गया और ये वाली वोल्टेज हमको यहां पर मिल गई पॉजिटिव साइड में। दिस इज आउटपुट हियर। यहां पर कौन सा इनपुट आया? ये वाली जो वोल्टेज थी ये यहां पर है। इसमें से जो कम ज्यादा हो रहा है वो इसमें से पार हो गया और जो कम ज्यादा नहीं हो रहा था, एक डायरेक्ट वैल्यू थी, इसकी वैल्यू, वो वैल्यू यहां आ गई। ये ऐसी करीब एक वैल्यू हमको यहां मिल जाती है। सो यहां से फिर हमको आउटपुट इस तरह का मिला। ये आउटपुट किसके बाद है? फिल्टर के बाद। दिस इज फिल्टर्ड डीसी। तो अब इसके पास देखिए डायरेक्शन एक है और वेरिएशन नहीं है। ये फिल्टर एक्शन को आपने अभी तक किस प्रिंसिपल से समझा कि कैपेसिटर क्या पास करने देता है? एसी, और किसको ब्लॉक करता है? डीसी। इससे आपको समझ में आया। एक दूसरा एक्सप्लेनेशन समझिए, वो टाइम पीरियड से है। कैपेसिटर को चार्ज फिलअप करने में थोड़ा सा टाइम लगता है और डिस्चार्ज होने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है। डिस्चार्ज होने में टाइम लगता है। देखिए यहां M से पॉजिटिव चार्जेस यहां पर आए और इसमें भर गए। ये मान लीजिए जब इसमें चार्जेस भर गए, इधर माइनस इधर प्लस, इसका पोटेंशियल हो गया 100 पोटेंशियल डिफरेंस। उसके बाद इसको ध्यान दीजिए, ये 100 वोल्ट आ गया। कैपेसिटर का भी पोटेंशियल कितना हो गया? 100। ये हमारी यहां पर सप्लाई है। इसके बाद कितना वोल्टेज आने वाला है? 0। यहां पर वोल्टेज क्या हो गया? 0। अब अगर इसका पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया सप्लाई का, तो कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस तो पहले ही कितना हो चुका है? 100। तो यहां पर हमको पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिलेगा? 0 या 100? तो आंसर है 100, क्योंकि कैपेसिटर के अक्रॉस 100 है और ये दोनों इससे जुड़े हुए हैं। इधर से क्या सप्लाई हुआ? 0, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके पास कितना है? 100। तो यहां पर हमको कितना मिलेगा? 100। किसके कारण? कैपेसिटर के कारण। ओके, अब कैपेसिटर से इसमें से चार्ज पार होने लगा। ये 100 बना 99, फिर 98, फिर 97। कहां जाना है इसको? 0 हो जाएगा ये, लेकिन 0 होगा एक एक कम करके होगा। 100 से कितना हुआ? 99, 99 से 98, 97, टाइम बीतते जा रहा है। ये यहां से कैपेसिटर को 97 होने में जो टाइम बीता, उतनी देर में फिर से ये करंट आ गई। कहां से? पीछे से। पीछे से फिर कितना वोल्टेज आ गया? 100। तब तक ये कितना डाउन हुआ था? 97 या 98। पीछे से फिर 100 वोल्ट आ गया, उसने फिर इसको क्या कर दिया? चार्ज। 100 आया, ये 98 पे था, इसने और उसको चार्ज कर दिया और इसका पोटेंशियल फिर कितना बन गया? 100। ठीक है, ओके। तो हमको यहां आउटपुट क्या मिला? 100। तो पहले हमको आउटपुट मिला था 100। इसे थोड़ा सा और मैं बड़ा कर देता हूं। ये हमको पहले आउटपुट मिला था 100। उसके बाद इधर से आउटपुट 0 हो गया और कैपेसिटर ने मेंटेन किया, थोड़ा सा कम हुआ 98। जैसे ही 98 हुआ, थोड़ा सा इतना टाइम बीता और इतने टाइम में फिर से यहां से 100 वोल्ट आ गया। वो आया, इसने इसमें चार्ज भरा, फिर से वोल्टेज कितना हो गया? 100। ओके,
100 भरा, उसके बाद फिर ये वोल्टेज जीरो हो गया, कौन, सप्लाई वोल्टेज जीरो हो गया। लेकिन हमको यहाँ पे फर्क नहीं पड़ा क्योंकि इसने हमको क्या देना शुरू कर दिया, 100। तो हमको आउटपुट में फिर क्या मिला, 100। ये 100 डिस्चार्ज होना शुरू हुआ तो 100 से कम होके 99, 98 पहुंचा। इतना टाइम बीता, तब तक सप्लाई फिर आ गई, ये फिर सप्लाई आ गई, फिर से इसका लेवल क्या हो गया, 100। यहां हमको 100 मिला। तो ये जो हमारा आउटपुट है, इसको या तो ये 100 देता है, कौन, ये वाला सर्किट, और जब ये 100 नहीं देता है तो कैपेसिटर 100 देता है। लेकिन हमको हमेशा क्या मिलता है, 100। समझ आई कुछ बात? या तो पीछे से 100 आएगा, और जब पीछे से 100 नहीं आ रहा है तो कैपेसिटर हमको देगा, क्योंकि कैपेसिटर में चार्ज भरा है और इसका पोटेंशियल इसके कारण पहले से ही 100 हो चुका है। इस कंडीशन को ऐसा समझिए जैसे हमारी छत पे पानी की टंकी पूरी भरी है, ओके। म्युनिसिपल का नल सुबह आता है, उसका लेवल 100 हो जाता है, उसके बाद हम दिन में यूज करते हैं, ये कम होते 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 90 पहुंचा, शाम को फिर नल आ जाता है, शाम को पानी आता है, ये फिर 100 हो गया। उसके बाद फिर हम रात को यूज करते हैं, 90 होता है, सुबह पानी फिर आता है, फिर 100 हो जाता है। तो हमारे नल में प्रेशर हमको हमेशा कितना मिलता है, 190, 190, वो कभी जीरो नहीं होता। या तो उसको सप्लाई देती है 100, या पानी की टंकी से 100 मिलता है। वैसे ही यहां से होता है, या तो यहां से 100 आ जाता है, और जब यहां से 100, ये जो 100 आता है ये इसको 100 बना देता है, इसके लेवल को, और जब ये बंद हो जाता है तो ये वाला हमको सप्लाई कर देता है। तो ये जितना टाइम है कि जब ये जीरो होके फिर से 100 होगा इनपुट, तब तक कैपेसिटर हमको सप्लाई करता है। तो हमको सप्लाई ऐसे मिलती रहती है, ये इस तरह से। इसके एकदम स्ट्रेट लाइन 100 की हो ऐसा नहीं है, क्योंकि अब आप भी समझ रहे हैं कि 100 से वो 99, 98 तो आएगा, उसके बाद फिर से सप्लाई आ जाएगी। तो ये 100 एक एग्जांपल है, दिस में भी 2 वोल्ट, दिस में भी 1 वोल्ट, पर जो भी है मैक्सिमम वैल्यू उसकी आते रहती है ये यहां पर। तो इस तरह से हमको ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन मिल जाती है। अब देखिए, इसके ये जो जीरो वाले वेरिएशन थे वो खत्म हो गए, डायरेक्शन यूनिफॉर्म हो गई। अगर एक डायरेक्शन में हो गया और वेरिएशन खत्म हो गए तो अब ये प्योर डीसी बन गई। समझ आया? सो दिस इज डीसी हैज बिकम यूनिडायरेक्शनल। अब उसके बाद लिख लेते हैं, नाउ इट इज पास्ड थ्रू a filter device. A filter device क्या होता है? कैपेसिटर एंड हाई रेसिस्टेंस इन पैरेलल, ये होता है फिल्टर डिवाइस। नाउ इट इज पास थ्रू ए फिल्टर डिवाइस। इन आउटपुट we get an envelope voltage. In one direction and no variations. In one direction and no variations. This is DC. This is rectified DC. तो अब ये हमको यहां पर ये रेक्टिफाइड डीसी आउटपुट मिलती है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। दिस इज रेक्टिफिकेशन ऑफ AC। ठीक है,